زمپان ریزورٹ ہے، اس کے اونر ہے یہ. میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے اکنامکس اینڈ فائنانس میں بیچلرس کی ہے. مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ بھائی میں کیا پڑھ کے آیا تھا اکنامکس اینڈ فائنانس میں، لیکن یہاں میں کیا کر رہا ہوں. پارٹنرشپ کے لیے ہم اسٹارٹ لی ہے. میں ہوں، میرے ساتھ ہے میرا کزن حیدر ہے، ٹھیک ہے، ہمارے دوست ہیں ہم خیر ساتھی ہے راہل منن. ہم اس سے کچھ کرنا چاہو گے تو اس میں بہت سارے رکاوٹیں فیس کرنے ہوتے ہیں. لوگوں کو جو ہے نا انٹرپرینور بنانا ہے، ان کو بچوں کے لیے ہم یہاں پہ 4-5 جھولے بھی لگا رہے ہیں تاکہ جو سینئر سٹیزنس ہیں یہاں ان کے لیے بھی کچھ اس طرح کا سیٹ اپ میں سوچ رہا ہوں. گلگت بلتستان ضلع گزر شہیدوں کی سرزمین ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت جھیلوں کی بھی سرزمین ہے. یہاں کے خوبصورت لوگ علم کی لازوال دولت سے مالا مال ہے. ایک سروے کے مطابق بتایا جا رہا ہے یہاں کے 95% لوگ ہیں ایجوکیٹڈ ہے. مرد ہو یا خواتین زندگی کے ہر شعبے سے منسلک ہے اور ہر میدان میں سب سے آگے ہیں. یہاں کے جو لوگ ہیں یہ تعلیم کو اپنا بنیادی مقصد سمجھتے ہیں. آج سے پہلے اگر تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں جو لوگ ہیں ان کا سوچنا اور کہنا یہی تھا کہ پڑھ لکھنے کے بعد کہ یا تو گورنمنٹ کی جاب لینی ہے یا کسی آرگنائزیشن یا این جی اوز میں جا کے سروسز دینے ہیں. یہ ان لوگوں کے تصورات تھے. مگر آج کل جو ہے نا دیکھنے کو یہ مل رہا ہے ایک پڑھے لکھے لوگوں کا رخ جو ہے نا اس ٹائم بڑے پیمانے پہ کاروبار کی طرف ہے. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں کے حساب سے اگر آپ جہاں کہیں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈگری لے کے آتے ہیں اور نوکری نہ کر کے کسی کاروبار میں قدم رکھنا یہاں بہت ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اس سے بھی مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے یہاں کی جو سوسائٹی ہے، جو والدین ہیں، جو سینئرس ہے، ان کی نظر میں کاروبار مطلب جو ہے نا یہ پڑھ لکھ کے اس کو یہ لوگ ترجیح نہیں دے رہے ہوتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ شروع میں کوئی بھی انیشیل اسٹیپ ہو کاروبار کے حوالے سے تو اس میں بنیادی طور پہ جو ہے نا شروع میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کاروبار میں تو مشکلات آتے ہی آتے ہیں، مگر اس سے بھی بڑی مشکلات یہاں کی جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کا سامنا کرنا سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. پاک اسکرین ٹیم اس وقت زمپان ریزورٹ کے باہر موجود ہے. بتایا یہ جا رہا ہے یہاں پہ یہ جو کاروبار کر رہے ہیں پارٹنرشپ میں یہ فارغ التحصیل ہے. ڈگری حاصل کرنے کے بعد آ کے ان لوگوں نے اپنا کاروبار یہاں پہ شروع کیا ہے. تو آئے ہم اندر جا کے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. اس وقت پاک اسکرین جو ٹیم ہے بھائی اعجاز کے ساتھ اس کے آفس میں موجود ہیں ہم لوگ. تو ہم اعجاز بھائی سے پوچھنا چاہیں گے، اعجاز بھائی آپ کا تعلق؟ جی محمود بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے آئے اور مجھ سے انٹرویو کرنے کا مجھے موقع دیا. تو میرا تعلق گاؤں ببر سے ہے. اعجاز بھائی کا تعلق ببر سے ہے. یہ جو زمپان ریزورٹ ہے اس کے اونر ہے یہ. تو بھائی جان ایک پڑھا لکھا ایک باشعور شہری ہیں. تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے بھائی آپ نے کہاں تک پڑھا؟ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی جو توجہ ہے جو آپ نے ڈیوٹی کی طرف نہیں دیا، آپ کا رخ جو ہے نا کاروبار کی طرف ہوا. یہ آپ نے کس طرح کیا سوچ کے آپ نے کاروبار کی طرف آئے؟ محمود بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اپنے بارے میں. تو میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے اکنامکس اینڈ فائنانس میں بیچلرس کی ہے. تو 2019 میں گریجویٹ ہوا تھا. اس کے بعد میں کراچی گیا تھا. کراچی میں نے یوویل ہیڈ آفس میں 3 سال میں نے وہاں پہ جاب کی. تو پھر وہ جاب کرتے دوران جاب مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ بھائی میں کیا پڑھ کے آیا تھا اکنامکس اینڈ فائنانس میں، ڈیمانڈ سپلائی میں پڑھ کے آیا ہوں، لیکن یہاں میں کیا کر رہا ہوں، مجھے چاہیے کہ میں انٹرپرینورشپ کی طرف آؤں. تو یہ سوچ کے ہم نے یہ قدم اٹھائی اور دسمبر میں ہم نے زمپان ریزورٹ شروع کیا تھا. ٹھیک، ابھی یہ 5 مہینے ہو گئے ماشاء اللہ سے. تو اچھی خاصی مارکیٹنگ ہماری ہو رہی ہے. بیسیکلی ہم یہاں پہ 3 پارٹنرس ہاں مل کے کام کر رہے ہیں. پارٹنرشپ کے لیے ہم اسٹارٹ لی ہے. میں ہوں، میرے ساتھ ہے میرا کزن حیدر ہے. ٹھیک ہے، حیدر جو کہ ریسکیو 112 میں جاب بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہاں پہ پارٹنر بھی ہے. اور اس نے کے آئی یو کیمپس سے، حمزہ کیمپس سے ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں بی ایس کی ہے اور مزے کی بات اپنے بیچ کا وہ گولڈ میڈلسٹ ہے. تیسرا جو ہمارا پارٹنر ہے وہ گاپوچ کا، یہاں پر گاپوچ کا ہمارے دوست ہیں ہم خیر ساتھی ہے راہل منن. ہم تینوں نے مل کے یہ اسٹارٹ اپ لی ہے. اور تو اس کے علاوہ جب آپ نے یہ کاروبار یہاں آ کے جب آپ نے شروع کیا تو آپ نے کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں محمود بھائی، آپ کوئی بھی اسٹارٹ اپ لیتے ہو یعنی خود سے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو بہت سارے مشکلات فیس کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک، یعنی کہتے ہیں نا کہ جو آرام طلب جو بندہ ہے، جس کی سائیکی آرام طلب ہوتی ہے،
वो ही जॉब करेगा हमेशा। ठीक। अगर आप खुद से कुछ करना चाहोगे तो उसमें बहुत सारे रुकावटें फेस करने होते हैं। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम जब ये कारोबार करने का सोचा, जो आइडिया आया, तो जाहिर सी बात है घर में भी डिस्कस करना पड़ता है। हमने घर में डिस्कस की तो सबसे पहले घर में ही हमें रजिस्ट किया। अच्छा, घर वालों का रवैया सही नहीं रहा? रवैया सही नहीं था कि यार आप पढ़ के कायदम से पढ़ के आप होटल खोलोगे, क्योंकि हमारा एक यूनिक आइडिया था होटल खोलने का भी। अब यहाँ ट्रेडिशनल माइंडसेट का लोग हैं, स्पेशली गेज़र में, तो ये माइंडसेट तोड़ना है। हमारा लॉन्ग टर्म विजन भी है, ये माइंडसेट तोड़ना है, लोगों को खुद मुख्तार बनाना है, लोगों को जो है ना एंटरप्रेन्योर बनाना है, उनको मोटिवेट करना है ताकि हमसे मोटिवेट होकर वो यहाँ आके करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो घर से फिर हमने घर वालों को सेटिस्फाई किया। उसके बाद जब हम मार्केट में आए तो मार्केट में भी 80 से 90% जो जितने भी हमारे लोग थे, हमारे रिश्तेदार या दोस्त वगैरह, सब ने नेगेटिव कमेंट्स पास किया कि आप ज़्यादा आप नहीं कर सकते। फिर उसके अलावा हमने जब दिसंबर में ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट की तो फिर कहने लगे कि यार दिसंबर में आप कर रहे हो, आप 2 हफ्ते बाद तय होकर वापस आ जाओगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंसान जो सोचता है वो कर दिखाता है, तो हमने कर दिखाया। हमारी अच्छी खासी मार्केटिंग भी हुई है, गुडविल भी बना है। तो अभी वही लोग हमारे फैन बन चुके हैं, हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है यार, हम भी कुछ करना चाह रहे हैं, वो भी सेटिस्फाई है अभी हमसे आइडियाज़ ले रहे हैं कारोबार के हवाले से। बिल्कुल। हमने भी सबसे पहले जब हमने ये स्टार्ट लिया था तो प्रॉपर चुपचाप हम नहीं आए हैं। ठीक, हमने स्टडी की है, प्रॉपर सर्वे किए, प्रॉपर जितने भी होटल्स हैं उनका डेटा उठाने के बाद वो उनकी परफॉर्मेंसेस देखिए। देखने के बाद हमने सोचा कि यार हम कोई ऐसी आइडिया लेके मार्केट में, जो मार्केट में पहले से मौजूद ना हो, जिसमें हमारे कंपटीटर्स इतने ना हो। और ये जगह भी चुनने का मकसद ये था, यहाँ पे हम जो है ना, एक तो हमने पिज़्ज़ा लिया, उसके अलावा यहाँ हम कैंपिंग साइट बनाएं और इवेंट्स मैनेज करें। तो इसी वजह से हम यहाँ पे आए। और यहाँ पे आसपास के लोग भी, आपको पता है, बहुत कोऑपरेटिव हैं और इस तरह हम चल रहे हैं। और इस वक्त जो हम सोच रहे हैं उसका 10% भी काम हुआ नहीं है। हमारा बहुत सारे काम पेंडिंग में, हम आगे होने हैं। इन फ्यूचर वो काम आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, अपने कारोबार के हवाले से, ये जो कारोबार आप कर रहे हैं, मुस्तकबिल के लिए आपका क्या विजन है? जी, अपना महमूद भाई, देखो, आप जब तक कोई टारगेट सेट नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। तो इस हवाले से इन फ्यूचर हमने 3 चीज़ें लेकर आगे बढ़नी है। एक तो ये होटल लाइन हो गया, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, दूसरा फिशरी से, और तीसरा टूर एंड टूर्स। ये 3 चीज़ें लेके हमने आगे बढ़ना है इन फ्यूचर, क्योंकि इसी में ही पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। और हम टीम बना के जाएंगे आगे, टीम बनाते हुए और आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे। और एक और मेरा विजन ये है कि गेज़र में स्पेशली कि यंग जो भी एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनका एक अलायंस बनाओ। ठीक, उनका अलायंस बनाओ, और उसका बेसिक मकसद ये होगा कि हम एक दूसरे को ही सपोर्ट करें, एक दूसरे की मार्केटिंग करें, ताकि हम मिल के आगे बढ़ सकें। कहते हैं ना कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर हम यूनाइट होंगे तो गेज़र में बहुत ऐसे, आपको पता है कि गेज़र में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, और टूरिज़्म का ये हब है। और सबसे ज़्यादा जीबी में सबसे ज़्यादा ट्राउट फिश भी गेज़र में पाया जाता है। तो यहाँ काम करने की ज़रूरत है, इसीलिए यूथ को आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे गेज़र के लोग स्पेशली वो जॉब ओरिएंटेड कल्चर के लोग हैं। बिल्कुल। आप पढ़ लिख के पुलिस में जाओ, आप पढ़ लिख के आर्मी में जाओ, आप पढ़ लिख के बैंकर बनो कहते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि आप पढ़ लिख के कारोबार करो। क्योंकि लोगों के पास हिस्ट्री ये रही कि जो अनपढ़ होता था, जो नहीं पढ़ता था, वही कारोबार में आता था। और ये भी मैंने इवन गूगल के अंदर भी ये देखा है, गाँव में हर जगह डेटा उठा के देखे, जो कारोबार करे उनके पास ही पैसा, वो ईमानदार है। तो हमने ये सोच के आया कि और ताकि हम अगर कामयाब हो जाएंगे तो आगे हमारी यूथ भी हमें देख के मोटिवेट होगी, और फिर हम उनको गाइड करेंगे, उनका हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ेंगे। एजाज भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने। आखिरी आपसे एक सवाल है कि हम सब जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी जो है ना अपनी आखिरी हद तक उरूज में है। नौजवान जो यूथ है उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा कारोबार के हवाले से? जी, अच्छा सवाल है महमूद भाई। मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखिए, आप इस वक्त करंट जो पाकिस्तान की और स्पेशली बल्तिस्तान की आप सिचुएशन देखेंगे, इकोनॉमी बिल्कुल श्रिंक हो चुकी है। पिछले 1.5 महीने में 1,27,000 जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर गए हैं। और क्योंकि यहाँ पे जॉब्स है नहीं, इन्फ्लेशन आसमान पे, मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल है, क्योंकि बाहर से कोई इन्वेस्टर आ नहीं रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बने, बिज़नेस की तरफ आए।
अगर आप बिज़नेस की तरफ आओगे तो आप खुद मुख्तार होगे, क्योंकि देखें आप, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि गज़र और गिली बल्चिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा रिसोर्सेज से यहाँ पे काम हुआ नहीं अभी तक, और यहाँ पे काम करना लाजमी है। इंसान जो सोचता है वो कर दिखाता है। बिल्कुल, इंसान जो सोचता है वो कर, पढ़े लिखे लोगों का आगे आना लाजमी है कारोबार में। जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं। इसीलिए अगर हम, हमारे जहन में कोई भी आइडिया हो, अब हमारे यूथ के जहनों में भी कोई भी छोटी मोटी आइडिया हो, आइडियाज से ही बंदा बड़ा बन जाता है। बिल्कुल। तो मैं अपने यूथ को यही कहूँगा कि आप आइडियाज़ लेके आए और आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जो कारोबार करेगा वही आगे बढ़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई और आके करेगा, कोई और आके आप पे रिसोर्सेज पे काबिज होगा। इसीलिए बेहतर यह है कि आप खुद करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, और जो कोई भी आइडिया हो, छोटा हो बड़ा हो, आइडियाज से ही इंसान बड़ा बन जाता है। आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना लाजमी है। आपने जो है ना कॉन्फिडेंस लाने खुद में देखें, कहते हैं ना, जो करना आसान है, बिज़नेस करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन आपने फेस करना है। चैलेंजेस को भी आपने फेस करने हैं, आपने अपने टारगेट सेट करने हैं और आपने उसको अचीव करना है। अचीव करने के लिए आपने स्ट्रेटजीज बनाना है। लेकिन शर्त यह है कि आप में खुद एतमादी हो, कॉन्फिडेंस हो, और आपको आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए, और आपने होना है। अच्छा एजाज भाई, कहने का मतलब ये हुआ कि कारोबार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटे कारोबार से आदमी बड़ा बन सकता है। तो अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप स्पेशली यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं? इसमें हमारे कुछ स्पेशलिटीज़ से महमूद भाई, यहाँ हम गज़र में हमने देखा पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस नहीं करा है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा है गज़र में पहली बार। जी जी जी। तो ये क्रेडिट जमपान रिजोर्ट को ही जाता है। वेरी गुड, तो जैसे यूनिक आइडिया। यस, तो न्यू ईयर पे हमने न्यू प्रोडक्ट लेके हम मार्केट में आए थे। ठीक। और हमने शुरू के 3 दिन जनवरी, 1 जनवरी, 2-3 जनवरी हमने 25% डिस्काउंट में दिया था, और उन 3 दिनों में हमारा प्रोडक्ट पूरी पुनियाल के हर गाँव तक पहुँचा था। उसके अलावा हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम गिच से लेके गाकुच तक होम डिलीवरी भी दे रहे हैं। वेरी गुड। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने कैंपिंग साइट भी उठाया है, तो यहाँ कैंपिंग साइट हम बना रहे हैं। इस वक्त इन प्रोसेस से काम हो रहा है। तो बाकी पाकिस्तानी डिशेस भी बन रहे हैं। मैं अभी आपको लेके वो अच्छा, आप ये जो पिज़्ज़ा बता रहे थे वो दिखा सकते हैं? आप किस तरह बनाते हो? बिल्कुल दिखा सकते चले हैं। वहाँ जाके हम वहाँ की मनाजिर दिखाएंगे आपको। अच्छा, तो एजाज भाई, यहाँ पे बन रही है वो पिज़्ज़ा जो आप बता रहे हैं? जी, किस में बन रही है? किस में बन रही है? ये हमारा पिज़्ज़ा का ओवन है महमूद भाई। ये हमने कराची से मंगवाया था। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त यहाँ पिज़्ज़ा अंदर पक रहा है। अच्छा, पिज़्ज़ा यहाँ कैमरा से इस तरफ करना। अच्छा एजाज भाई, ये जो कैंपिंग का आप बता रहे थे वो इस टाइप इसका सेटलमेंट जो है ना इस जगह में होगी? जी महमूद भाई, ये आप देख सकते हैं, ये वहाँ तक जो नज़ारा है दीवार तक, ये सारा हमारे पास है। और यहाँ हम बना रहे हैं कैंपिंग साइट। ठीक। तो यहाँ पे फिलहाल तो काम हुआ नहीं, आप देख रहे हो बिल्कुल बिखरी हुई है। इस वक्त बाजरी यहाँ पे है, रेत यहाँ पे प्रोसेस है ना काम? जी, इन प्रोसेस है। तो यहाँ हम चाह रहे हैं कि यहाँ 4-5 टेंट्स डिस्प्ले करें, टेंट्स लगा रहे हैं। उसके अलावा 3-4 तख्त लगा रहे हैं, देसी तख्त। सही। और यहाँ पे कुर्सियों का सेटअप देंगे फैमिली के लिए ना? इसके लिए फिर वो यहाँ बच्चे भी आएंगे। ठीक है, उनके लिए भी कोई सिस्टम बनाओगे? बच्चों के लिए, हाँ, मजे की बात, बच्चों के लिए हम यहाँ पे 4-5 झूले भी लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। झूला झूले और इंटरटेन हो सके। उसके अलावा स्पेशली, क्योंकि ये मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे काम ये नहीं हुआ है, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बिल्कुल घर बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यहाँ उनके लिए भी कुछ इस तरह का सेटअप में अच्छा सोच रहे हो? ठीक, अच्छी बात। या इस तरह का कोई सेटअप बैठक बनाऊं कि वो मिल के यहाँ आए, गपशप करे, चाय शाय पिए, और एक फैमिली वाला माहौल होगा। मेंटल पीस उनको मिले और सुकून से वो वापस घर जा सके, ताकि वो फ्रस्ट्रेशन उनकी दूर हो। ये भी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, तो दोस्तों, आपने एजाज भाई के जो ख्यालात थे उनको सुना भी हैं, अंदर जो इनका जो किचन सिस्टम था आपने देखा भी। तो आप किसी भी टाइम आप पिज़्ज़ा का आप ऑर्डर कर सकते हो। ठिंगदास और सिंगल इवन गिश तक इनका जो है ना डिलीवरी ये दे रहे हैं। तो आप एक दफ़ा ज़रूर इनके पास आना है और इनसे राबिता करना है। बहुत शुक्रिया एजाज भाई, थैंक यू सो मच।